Welcome to the third session of the today's lecture. After the requirement gathering, now we will study about the requirement analysis. Now we have collected the requirements using the by studying the existing document, um, interviewing with the different type of user, performing task scenario and the uh, task analysis and the scenario analysis, and also through the form analysis. Once we gather all the requirements through this activity, now we have to perform the analysis. Why we perform analysis? We perform analysis to check whether हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स में कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, एंड इनकम्प्लीटनेस तो नहीं है. इन चीज़ों को चेक करने के लिए ही हम एनालिसिस करते हैं. So we try to find out, is there any incompleteness or inconsistency in our requirements? If it exists, then we will try to remove all the inconsistency and the incompleteness. That can be resolved with the further discussion with the end user and the customer. Now, first of all, what do you mean by the ambiguity? Ambiguity का मतलब क्या होता है? एक ही if the same statement can be interpreted in more than one way, then it leads to ambiguity. अगर एक ही statement का meaning एक से ज़्यादा अलग अलग लोग उसको interpret कर रहे हैं, then it may lead to a ambiguity. For example, let's see that हमें एक process control ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, जिसमें है कि अगर टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, देन वी हैव टू स्विच ऑफ द हीटर. अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई विल बी कंसिडर्ड इन अ डिफरेंट वे. हर एक पीपल के लिए अलग मीनिंग होता है टेम्परेचर हाई. किसी के लिए होगा कि अगर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, दैट विल बी कंसिडर हाई. किसी के लिए होगा कि 75 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चला जाता है तो उसके लिए हाई होगा, और किसी के लिए अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो भी हाई होगा. तो यहाँ पे अलग अलग लोग टेम्परेचर हाई का मीनिंग अलग अलग समझ रहे हैं. सो वाइल taking the requirement, the proper quantification need to be performed. That means कि what will be the exact value for the high temperature need to be recorded in the documentation. So फिर ये होगा कि अगर आपने लिख दिया है कि नहीं, अगर 75 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एवब जाता है तो हीटर को बंद कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है कि 75 डिग्री सेल्सियस, फिर लोग इसको अलग अलग इंटरप्रेट नहीं करेंगे. हियर the same control field will be have the same format, and one control field is issued for all customer. So यहाँ पे ambiguity का मतलब क्या होता है कि एक information जिसका अलग अलग मीनिंग, अलग 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 लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, then it leads to a ambiguity. Now, inconsistent requirement. What do you mean by the inconsistent requirement? If the requirement contradicts with each other, then it is called a inconsistent. Contradict मतलब एक ही रिक्वायरमेंट दिया हुआ है लेकिन दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, देन इट लीड्स टू अ इनकंसिस्टेंसी इन द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी कि एक कस्टमर ने कहा है कि टर्न ऑफ द हीटर एंड ओपन वाटर शावर व्हेन द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दूसरे कस्टमर ने कहा है कि टर्न ऑफ द हीटर एंड टर्न ऑन कूलर व्हेन द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो क्या है कि वी आर मेकिंग अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एंड यहाँ पर है कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से एवर्ब चला जाए तो एक ने कहा है कि वाटर शावर ऑन कर दीजिए, और दूसरे ने कहा है कि आप टर्न ऑफ द हीटर. सो इन दिस वे the same information contradict to each other. So there should be while requirement gathering, information एक दूसरे से contradict नहीं करने चाहिए. There should be a proper clarification that कि once the temperature is above 100 degree Celsius क्या करना है.
वाटर शॉवर ऑन करना है या तो कूलर ऑन करना है, दोनों हम चीज़ नहीं लिख सकते हैं. ओके. एंड थर्ड वन इज आवर incomplete requirement. Incomplete requirement means, let's see, that may happens due to the oversight. कभी कभी वो हमसे मिस हो जाता है एंड वी हम लोग उतने दूर तक नहीं सोच पाते हैं कि ये भी होना चाहिए था. that leads to a incompleteness. For example, the analyst has not recorded when the temperature falls below 90 डिग्री सेल्सियस. हमने देखा एम्बिग्यूटी में, हमने क्या देखा है कि अगर हमने ये बोला एम्बिग्यूटी में कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमें हीटर को टर्न ऑफ कर देना है. तो हमने बोला कि नहीं, प्रॉपर क्वांटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देना होगा कि टेम्परेचर हाई का मतलब क्या होगा. यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस होगा कि 75 डिग्री सेल्सियस होगा कि 60 डिग्री सेल्सियस होगा. दैट नीड टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक ही इंफॉर्मेशन जिसके दो अलग अलग स्टेटमेंट जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. जैसे कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, तो आपको हीटर ऑन कर लेना है, नहीं तो सॉरी, आपको कूलर ऑन कर लेना है, नहीं तो वाटर शावर ऑन कर लेना है. आप दोनों चीज नहीं ले सकते हो, आपको कोई एक ही चीज इंक्लूड करना होगा. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट. यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, बट अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस के बिलो चला जाएगा, देन व्हाट वी हैव टू डू इन द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. तो इसका इंफॉर्मेशन भी और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होना चाहिए. इधर वी हैव टू टर्न ऑफ द हीटर और the water shower should be turned off. So during the analysis we try to remove the ambiguity, the incompleteness and the inconsistency in the software. So once we perform the requirement gathering, we go for the requirement analysis and we try to remove the ambiguity, the inconsistency and the incompleteness in the requirement. After that, we go for the documentation. In my next lecture, I will discuss about the how to perform the requirement specification. Thank you.